Hello, good morning, students. So today we are continue the complex number. In the previous video lecture, we discussed on the very first topic of mathematics paper second, that is complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने अब तक क्या पढ़ा है, थोड़ा रिवाइज करता हूँ मैं. पहले हमने लिया व्हाट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर. जस्ट रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. Z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज A plus BI. This A and B are real numbers and I is called as what? Imaginary number, that is under root minus 1. This is called as the complex number. And this number is called as the imaginary number. This is imaginary number, this is complex number. Imaginary number means what? A number which is non-real number but whose square is negative. That number is called as imaginary number, whose definition is a number in the form of k into I, where k is any constant, that is a real number, and I is imaginary number, that I stands for iota or imaginary unit. This is complex number. So this complex number has number of properties we discuss. Now we equating equality of complex number. ये जो दो complex number A plus BI और C plus DI, these two complex numbers are said to be equal if and only if their real part are same and their imaginary part are same. Then we say that these two complex numbers are equal, right? And next is conjugate of complex number. अगर A plus BI complex number है, उसका conjugate क्या होता है? A minus BI. So conjugate of complex number means what? Only change the sign of imaginary part. कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक पहला पार्ट एक दूसरा पार्ट. सो दिस इज कॉल्ड एज द रियल पार्ट बिकॉज यहाँ पर आई नहीं है. इफ देर इज आई, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी पार्ट. सो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. इफ रियल पार्ट इज जीरो, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली imaginary part. If imaginary part is zero, that complex number is purely a real number. Okay, बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिया है. अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, now next the some operations between the complex number means addition, subtraction, multiplication, division, scalar multiplication. How to add the two complex number, how to subtract the complex number, how to multiply two complex number, and how to divide two complex number. These are some operation between complex number. Let us start from the first, that is the addition of complex numbers. Addition of complex number. Of complex numbers. So let us see Z1. It is equal to 3 plus 4i. Z2. Simple example लेंगे 2 plus 3i. These are two complex numbers, Z1 and Z2. इसको एडिशन करना है. So एडिशन कैसे करेंगे? Z1 plus Z2. It means 3 plus 4i. plus 2 plus 3i. So 3 plus 4i plus 2 plus 3i. Addition करते time we can add only real part. 3 plus 2, that is 5. 4i plus 3i, it is 7i. So this is simple addition of complex number. सिर्फ किन चीज़ों पे ध्यान देना है हमें? सिर्फ रियल पार्ट की एडिशन हो सकती है और इमेजिनरी पार्ट की एडिशन हो सकती है. अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बहुत बार हर बार मैं बोल रहा हूँ. सो दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट. 3 plus 2 5, 4i plus 3i 7i. दिस इज सिंपल एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. देखो आप बच्चों, आप ऐसे कहेंगे सर इतना सिंपल, बहुत ईजी है 11th स्टैंडर्ड मैथ्स. जैसे सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन जो हम 11th स्टैंडर्ड में सिखा रहे हैं, इतना इससे इजी कोई हो ही नहीं सकता. हम 11th स्टैंडर्ड में एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं.
सो बहुत इजी है, सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, सब नोट्स राइट डाउन करना है। जब जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करना है, तभी सब चीज़ें आपके समझ में आएंगी। सिर्फ अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी। जो जो पार्ट मैं बोर्ड पे राइट करता हूँ वो सब आपको नोट्स में लिखना है, तभी सब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखो एग्जाम्पल लिया मैंने, अब इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आई। दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 z2। z1 प्लस z2 कैसा होगा, a प्लस बी आई प्लस c प्लस डी आई। सो a प्लस बी आई प्लस c प्लस डी आई, रियल पार्ट a प्लस c, imaginary part b plus di, b plus di, a imaginary part, that is called z1 plus z2. This is the process to add the two complex number. Now some properties of complex number. Properties of addition of complex number. अब प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वेरी सिंपल, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज z1 प्लस z2। सो वी कैन राइट z2 प्लस z1 सेम ही आएगी। ऐसे भी क्या, 2 प्लस 3 आए प्लस 3 प्लस 4 आए तो 2 प्लस 3 कितना आएगा, 5 आएगा। 3 आए प्लस 4 आए कितना आएगा, 7 आई आएगा। सो इट मीन्स व्हाट, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ second property, that is z1 plus z2 plus z3, associative property कहेंगे इसको हम, z1 plus z2 plus z3, associative property for complex number. Number third complex number, properties of complex number. For example, z1 plus 0, so we can write 0 plus z1, that is equal to what, z1. This is the addition of complex number. Fourth property of that is z1 plus z1 bar, z plus z bar, z plus z bar, it is equal to 2 times रियल पार्ट ऑफ z। इसको मैं थोड़ा प्रूव करके दिखाता हूं। देखो, एक z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज 3 प्लस 4 आए, उसका कॉन्जुगेट कितना है, 3 माइनस 4 आए, 3 माइनस 4 आए। 3 प्लस 4 आई इज कॉम्प्लेक्स हुज कॉन्जुगेट इज 3 माइनस 4 आए। इसकी एडिशन देखो कितनी आती, 3 प्लस 4 आए प्लस 3 माइनस 4 आए, माइनस 4 आए प्लस 4 आए, कट हो गया, 0 हो गया। वो कट करने मीन्स व्हाट, दैट गोज टू 0। 3 प्लस 3 6 मीन्स 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, डबल हो गया। 3 प्लस 3 6 है, लेकिन इट इज 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। रियल पार्ट कितना है, 3 है, ये डबल है रियल पार्ट। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक प्रॉपर्टी नंबर 5th, z minus z bar, it is a 2 times of imaginary part of z, 2 times of imaginary part of z। यही एग्जाम्पल कैरी करेंगे हम, यहां पर सिर्फ माइनस करेंगे। 3 प्लस 4 आए माइनस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आया, ये माइनस 3 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आया होगा, ये प्लस 3 माइनस 3 कट हो गया। 4 आई प्लस 4 आई, इट इज 8 आई, बट एक्चुअली द 2 टाइम्स ऑफ 4 आई। 2 times of 4 I means what? 2 times of imaginary part of z. It is equal to 2 times the imaginary part of z. So these are some properties of addition of complex number. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एडिशन करते टाइम सिर्फ आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? We can add only real part and imaginary part. 3 plus 2 is 5.
4i plus 3i is what? 7i. राइट, दिस सिंपल थ्योरी ना. इसके बाद हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे. सेम चीज़ है सब्सट्रैक्शन पर भी. यही एग्जाम्पल कैरी करेंगे हम. दैट इज सेकंड ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन कैसा पॉसिबल है. सो सेम एग्जाम्पल लिया मैंने. Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3i. अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2. सो दिस इज 3 प्लस 4i माइनस 2, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 3i. 3 माइनस 2 is 1, 4i minus 3i is I. So this is the answer. Right? अगर हम उल्टा किया, Z2 minus Z1 किया, so it is a 2 plus 3i minus 3 plus 4i. 2 plus 3i minus 3 minus 4i. माइनस 3 माइनस 4i. सिंपल डिफरेंस है. यहाँ पर रियल पार्ट 2 है, यहाँ पर रियल पार्ट माइनस 3 है. सो 2 माइनस 3 कितना होता है? माइनस 1 होगा. 3i माइनस 4i इज माइनस i. दिस इज द आंसर. Z2 माइनस Z1. ये दोनों एग्जाम्पल हुए. अब हम एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ जाएंगे. Z1 एंड Z2. सो दिस इज a plus bi minus c minus di. So a minus c plus b minus di, b minus di. So this is a simple difference between two complex number or subtraction of two complex number. जैसे हमने एडिशन किया वैसे सेम सब्सट्रैक्शन करना है. वही कंसेप्ट है. रियल पार्ट की एडिशन सब्सट्रैक्शन होती है, इमेजिनरी पार्ट की एडिशन सब्सट्रैक्शन होती है. सो वही करना है. ये एग्जाम्पल है, ये उसका डेफिनेशन है. ओके. So after addition, subtraction, now we are going to start the scalar multiplication. Scalar multiplication. So this is a Z is a complex number a plus bi. So a, b are real numbers and I is imaginary number root minus 1. ये डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की. पहले एग्जाम्पल देखो. सपोज ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z, दैट इज 3 प्लस 2i और हमें फाइंड करना है 3Z. 3 is a scalar, any constant number. Scalar is a physical quantity which has only magnitude, nothing direction. Magnitude means only constant number. Simple a constant number है, that is scalar quantity. So 3 plus 2i is a complex number. हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, constant number से complex number को मल्टीप्लाई करना है scalar quantity से. So that is 3 into 3 plus 2i. सो मल्टीप्लीकेशन सिंपल कैसे करें देखो. 3 इंटू 3 कितना होगा? 9. 3 इंटू 2 कितना होगा? 6. दिस इज कॉल्ड एज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर z है, सो k इंटू जेड. k इज अ स्केलर. k इंटू a प्लस बी आई, दैट इज k इंटू a प्लस k इंटू बी आई. This is symbol called the scalar multiplication. Here k is scalar.
or any constant. K is constant. कांस्टेंट को स्केलर कहते हैं, बट स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी. वो फिजिकल क्वांटिटी उस व्यू से उसको लिया है यहाँ पर. ये हो गया सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. मल्टीप्लाई कैसे, दो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं. मैं क्या करता हूँ, पहले एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद दैट डेफिनेशन डिफाइन करता हूँ. सो देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z1. सिंपल लेंगे एग्जांपल यहाँ पर 3 + 2i, और Z2 लेंगे. अभी ये टाइम हम एक निगेटिव नंबर लेंगे, दैट इज 2 - 5i. अगर बच्चे पूछेंगे सर हर बार सिंपल दोनों सम प्लस साइन के लेते हैं, यहाँ पर एक माइनस लिया, 2 - 5i. ठीक है. और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पहले कभी भी रियल पार्ट लिखना, दूसरा कभी भी क्या लिखना है, इमेजिनरी पार्ट. अगर एग्जाम में बुक में पहले इमेजिनरी पार्ट दिया तो इमीडिएटली नोट करते टाइम उसको करेक्शन करना है, पहले रियल नंबर देन इमेजिनरी नंबर. नाउ Z1 into Z2, this cross or simple dot, that is the sign of multiplication. Now first 3 + 2i multiplied 2 - 5i. मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा ध्यान देना है. पहला नंबर से 3 × 2 3 × -4i. 3 × 2 कितना, 6. 3 × -5i -15i. इज इट क्लियर. नाउ प्लस 2i से 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को मल्टीप्लाई करना है, -5 को. सो डोंट मिस द साइन. 2 का साइन प्लस है और उधर 5 का साइन क्या है, माइनस है. सो 2i × 2 4i, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2i × 5i, 2 × 5 10i². 10i². i × i कितना होता है, i² होता है. आप देखो यहाँ पर कितना होगा, 6 - 15i + 4i, दैट इज हाउ मच, 11i. -11i. -15i + 4i, दैट इज -11i. अब देखो यहाँ पर व्हाट इज द i इज व्हाट, √-1. व्हाट इज i², i² इज इक्वल टू -1. अगर i की वैल्यू √-1 है तो उसका स्क्वायर कितना होता है, नेगेटिव होता है. ये तो डेफिनेशन अपनी इमेजिनरी नंबर की. सो दिस इज अ -10i². सो इट इज -10 इंटू व्हाट इज i², -1. द वैल्यू ऑफ i² इज -1. सो यहाँ पर थोड़ा फोकस करना है. ये टर्म इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इजी है. मल्टीप्लाई सेम 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हम सालों से सीखते आ रहे हैं. 7, 6 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, बहुत बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है. एक नंबर से 3 × 2 3 × -5i, देन 2i × 2 4i, 2i × -5i -10i², i × i². i² कितना होता है, -1. 6 दोनों रियल इमेजिनरी पार्ट है, इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है. 4 में से -15 -11i. So this is equal to 6 - 11i -10 into -1, it is +10. माइनस इंटू माइनस कितना, प्लस. 10 into 1 कितना, 10. Now this is real part, this is also real part. 6 plus 10 16 minus 11 आया. This is Z1 into Z2. ये हो गया उसका मल्टीप्लिकेशन, राइट. अब देखो हम Z1 is equal to A plus BI and Z2 is equal to C plus DI. ये जो A B C D है ये सब रियल नंबर है. All are real number and I is imaginary number, that is √-1. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, Z1 into Z2 करना है. Z1 into Z2
What is the procedure for multiplication? First number is a plus bi. Second number is c plus di. यहाँ पर क्रॉस लिखना है, नहीं तो डॉट लिखना है, नहीं तो कुछ भी नहीं लिखा तो भी चलता. Means what? It means what? It is a multiplication of two bracket. पहला ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट, बीच में क्रॉस, नहीं तो डॉट, नहीं तो कुछ भी नहीं लिखा तो भी इट इज ऑब्वियस व्हाट? मल्टीप्लिकेशन. नाउ ए इंटू सी ए सी, ए इंटू डी ए डी आई, बी आई इंटू सी बी सी आई, बी आई इंटू डी आई बी डी आई स्क्वायर, बी डी आई स्क्वायर, बी आई इंटू डी आई, बी इंटू डी बी डी, आई इंटू आई आई स्क्वायर, ए इंटू सी ए सी, ए इंटू डी आई ए डी आई. अब एक्चुअल ए डी आई का मीनिंग क्या होता है? ए इंटू डी इंटू आई. इंटू मीन्स व्हाट? मल्टीप्लाई. बी आई इंटू सी बी सी आई. इट इज कॉमन सेंस. लास्ट टाइम आई लिखना है. बी आई इंटू सी, इसको बी आई सी मत लिखो. इट इज ऑट ऑब्वियस बी सी आई. बी आई इंटू डी आई बी डी आई स्क्वायर. नाउ लुक एट दिस. ए सी, ए डी आई प्लस बी सी आई, ए डी प्लस बी सी आई, ए डी प्लस बी सी आई. आई कॉमन लिया वहाँ पर. ये दोनों भी इमेजिनरी पार्ट है. इमेजिनरी पार्ट की एडिशन पॉसिबल है. सो ए डी प्लस बी सी आई. नाउ सेम यहाँ पर व्हाट इज द टर्म ऑफ आई स्क्वायर? आई स्क्वायर कितना होता है? -1. Why I square is -1? Because I is root -1. That's why square of that is -1. So we can write here minus BD. AC रियल पार्ट है, BD रियल पार्ट है. इसको हम रियल पार्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज वहाँ पर I है क्या? नहीं है. If there is no I, that is real part. If there is I, that is imaginary part. So AC और BD इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं. थोड़ा साइड में लिखता हूँ मैं यहाँ पर. सो Z1 इंटू Z2, फाइनल आंसर इसका ये आ जाएगा AC माइनस BD रियल पार्ट प्लस AD प्लस BCI, ये उसका मल्टीप्लिकेशन. राइट. दैट्स वाई मैंने पहले अपना न्यूमेरिकल लिया, बाद में एक्चुअल डेफिनेशन लिया. दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. मल्टीप्लिकेशन के हम एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, सो वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके. लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आप थोड़े एग्जांपल देखेंगे. एक दो एग्जांपल लेने के बाद एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जांपल होने वाले, लेकिन फिर भी एक टिपिकल कुछ एग्जांपल मैं मल्टीप्लिकेशन के लेता हूँ. लेट अस सी. We have to suppose this is Z1 is equal to 3 minus 4i and Z2 is equal to -2 minus 7i. इसका मल्टीप्लिकेशन करना है. Z1 इंटू Z2, 3 minus 4i and second is -2 minus 7i. Multiplication simple way. 3 into -2 -6, 3 into -7i -21i. सिंपल वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जैसे हम रेगुलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करना है. सिर्फ यहाँ पर I है, यही ध्यान देना है. -4i इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 into 2 is 8i. -4i into -7i, it is a plus 28i. 4 7s are 7 4s are 28, minus into minus plus, I into I square. I into I is how much? I square. This equal to -6. 21 में से 8i, 21i प्लस 8i. इधर माइनस साइन है, इधर प्लस है. बड़ा नंबर माइनस को माइनस है, दैट्स माइनस. 21 से 8,
So it is a 13 plus 8, how much? 21. 13 plus 8 is minus 39. I square की वैल्यू कितनी होती है? minus 1. That's why it is a plus 28 into minus 1. Right? So this is equal to minus 6 minus 31i minus 28. 28 into minus 1 minus 28. 28 plus 6, ये माइनस 6 है, ये माइनस 28 है, दोनों की साइन निगेटिव है, दोनों रियल पार्ट है, एडिशन पॉसिबल है, दैट इज माइनस 34 माइनस 39, ये उसका मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z2. 28 माइनस 28 माइनस 6 माइनस 34, ये माइनस 13i. वाई माइनस 13? माइनस 21i प्लस 8, माइनस 21i प्लस 8i, दोनों इमेजिनरी पार्ट है, उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन कितना होगा? माइनस 39 होगा. दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन. सो सम प्रॉपर्टीज आर देयर, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो पहली प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2 या Z2 इंटू Z1 टू बी सेम, that is commutative property for multiplication. Second property, Z1 Z2 Z3, कौन सा भी पहला मल्टीप्लाई करो सेम रहेगा. दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z3. इसको प्रूव भी कर सकते, कौन से भी नंबर से मल्टीप्लाई करो. देखो इसको पहले ये दो मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम यही आएगा. नंबर 3 प्रॉपर्टी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, दैट इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन. ये सब प्रॉपर्टीज है, प्रूव भी हो सकती है, लेकिन सिंपल प्रॉपर्टी है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मीन्स 1 से मल्टीप्लाई किया है Z1 को तो सेम कितना आएगा? Z1 ही आएगा. दिस इज मल्टीप्लिकेशन. अब इसके बाद क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. एग्जाम्पल लेता हूँ तभी आइडिया कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी. पहले एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ. सिंपल टू हार्ड जाएंगे तो थोड़ा इजी जाएगा. पहले एग्जाम्पल हार्ड लिया तो बच्चे समझेंगे बहुत टफ है ये. एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के बाद ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो एक एग्जाम्पल लेंगे, वही सिंपल लेंगे, दैट इज अ 2 + 3i, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i. कितना है? 3 + 4i. अब हमें डिवाइड करना है Z1 बाय Z2. Z1 न्यूमरेटर 2 + 3i, Z2 डिनोमिनेटर 3 + 4i. So now this step is important, that's why I write here star mark. Star mark means यहाँ पर आपको फोकस करना है, इंपॉर्टेंट स्टेप है ये डिवीजन की. So ऊपर है न्यूमरेटर में 2 + 3i, डिनोमिनेटर में 3 + 4i, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर. फॉर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड. न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर हमें मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से, 3 - 4i. 3 - 4i. सो 3 + 4i का कॉन्जुगेट क्या है? 3 - 4i. लेकिन डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना नहीं है. सो फॉर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड बाय इट्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. 3 + 4i का कॉन्जुगेट क्या है? 3 - 4i, दोनों साइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर.
Now, it is simple. Multiplication of numerator. 2 plus 3i. 3 minus 4i. Multiplication of denominator. 3 plus 4i. 3 minus 4i. अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसा न्यूमरेटर. अब मैं यहाँ पर मार्क ने कहा था 2 इंटू 3 6, 2 इंटू माइनस 4i माइनस 8i, 3i इंटू 3 9i. बहुत केयरफुली करना है. 3 इंटू 3 9, ये i एज इट इज. 3i इंटू माइनस 4i, 3 इंटू माइनस 4 इज माइनस 12, i इंटू i इज i स्क्वेयर डिवाइडेड बाय. अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी है जो अपनी बेसिक मैथमेटिक्स में a प्लस बी ए माइनस बी. साइड में लिखता हूँ मैं यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. व्हाट इज दैट आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कितना है वो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सेम यहाँ पर करना है. 3 प्लस 4i, 3 माइनस 4i, 3 स्क्वायर 4i स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ लुक एट दिस. 6, 9i में से 8 आ गया 1i. 1i का मीनिंग क्या होता है? 1 इंटू आई. माइनस 12i स्क्वायर, दैट इज प्लस 12. वाई इट इज प्लस 12? बिकॉज आई स्क्वायर कितना होता है? माइनस 1. आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है. सो माइनस 12 इंटू माइनस 1 इज प्लस 12. 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 आई स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 16, आई स्क्वायर इज आई स्क्वायर. नाउ 6 plus 12 18 plus 1i. 1i means only i. 9 plus 16. 9 minus 16 I square था because I square is how much? Minus 1. That's why it is minus minus plus 16. Now I will write here 18 plus I divided by how much? 25. कितना है? 25. So what is the answer? 18 plus I divided by 25. So इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. अपना स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा है? पहला रियल पार्ट होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए? और इमेजिनरी पार्ट. सो सेपरेट डिवाइड करेंगे इसको. 18 by 25 and 1 by 25 आए. सेपरेट डिवाइड किया. 18 by 25 यहाँ पर 1 है. 1 by 25. Now this is the real part. This is what? Imaginary part. 8 by 25 is the real part and 1 by 25 is the imaginary part. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने से फिर कौन सा नंबर मिलता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है. और एक एग्जाम्पल. सो इसी एग्जाम्पल को हम कैरी करेंगे. यहाँ पर Z1 by Z2 किया तो आप क्या करेंगे? Z2 by Z1 करेंगे. बिकॉज वी नो दैट 4 by 2 is never equal to 2 by 4. 4 by 2 is never equal to 2 by 4. 4 by 2 2 होता है और 2 by 4 1 by 2 होता है. सो सेम डिवीजन इज नेवर कम्यूटेटिव. अब सेम एग्जांपल हम करेंगे Z2 by Z1. सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे. सो इट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3 plus 4i. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 plus 3i. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड बाय 2 minus 3i. 2 plus 3i को उसका कॉन्जुगेट क्या है? 2 minus 3i. वो मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखो सेम मल्टीप्लिकेशन अपना न्यूमरेटर 3 plus 4i, 2 minus 3i, 2 plus 3i, 2 minus 3i, 2 plus 3i, 2 minus 3i. So multiplication same. 3 into 2 6, 3 into minus 3i 9i, 3 into minus 3 minus 9,
I. 4i into 2, 8i. 4i into minus 3i minus 12i square. अब ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस. ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पॉसिबल है. ओके, नाउ हियर लुक एट दिस. डिवाइडेड बाय 2 plus 3i, 2 minus 3i, a plus b, a minus b, a square minus b square, a square minus b square. सेम आइडेंटिटी फॉलो की. 6 8i minus 9i minus i. बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है, उसका साइन कौन सा है? माइनस. 8 में से 9 गया, माइनस 1 माइनस i. दिस इज प्लस 12. 2 square is 4, 3 square is 9, i square. अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है जो भी है. यहाँ पर मैंने i square minus 1 लिया, बिकॉज i square is minus 1, दैट्स वाई इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस 12 हो गया. 3 square is 9, ये i square. 6 plus 12, 18 minus i डिवाइडेड बाय 4 plus 9. अभी माइनस 9 का प्लस 9 हुआ है, बिकॉज आई स्क्वायर इज माइनस 1. सेम रीजन. 8 माइनस आई डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 13. 18 बाय 13 माइनस 1 बाय 13 आई. दिस इज सिंपल कॉल्ड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो एक ही चीज आपको ध्यान देना है. डिवीजन ऑफ, फॉर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर we have to multiplied on both side, numerator as well as denominator, by conjugate of denominator. किससे मल्टीप्लाई करना है? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है. इस यही चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी सेम है. ये Z1 बाय Z2 था, ये Z2 बाय Z1 है. दिस इज द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बाद होने वाले हैं, बट दिस इज इनफ of algebra of complex number. ओके, सो इसके बाद बहुत सारी एक्सरसाइज है 1.1 हम कल स्टार्ट करेंगे. सो टुडे आई विल स्टॉप हियर. आप ये वीडियो लेक्चर में कहा क्या क्या मैंने लिया? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स व्हाट? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus bi, where a, b are real numbers and I is what? Imaginary number. A is the real part, b is called as what? Imaginary part. इतना मैंने ए लेक्चर में लिया. सो ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट द एक्चुअल एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.1 विल टेक ऑन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. बट अगर लास्ट एक मिनट लेता हूँ आपका. आपको मैंने जो भी चीज़ यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किए, जो भी मैंने राइट किया, वो सब चीज़ें आपको नोटबुक में कॉपी करना है. मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर दिस पेपर सेकंड. जैसे आपने पेपर फर्स्ट को एक नोटबुक किया है, वैसे पेपर सेकंड को आपको एक नोटबुक करना है. उसका पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, थैंक यू वेरी मच.